Hello students. Hello students. I Pallav Darbari. Welcome you all in my YouTube channel, Pallav Darbari Classes. In this video, I will discuss second chapter National Income Accounting. This is my 14th video on the National Income Accounting. In this video, we will solve the numericals of national income by applying the expenditure method. In the previous video, we have solved the numericals by applying the value added method. We have also solved the national income by applying the income method. In this video, we will learn how to calculate national income by applying expenditure method. If we have to solve the national income by applying the expenditure method, we have to follow certain steps. Calculation of national income by applying the expenditure method. What are the steps we are supposed to follow? कौन-कौन से steps को follow करना है? First step is when we apply the expenditure method, firstly we have to calculate the GDP MP. सबसे पहले हम लोगों को GDP MP calculate करना है. The question is how we can calculate the GDP MP. We can calculate the GDP MP by the summation of three items. First one is gross final consumption expenditure. Second is gross domestic capital formation. Third is net export. By the summation of these three items, we will get GDP MP. Second step is we have to calculate the domestic income. To calculate the domestic income, we will deduct depreciation and NIT from the GDP MP. After deducting NIT from and the depreciation from the GDP MP, we will get domestic income. The third step is we have to find out NFIA. NFIA means the difference between FIFA and FITA. After finding out NFIA, to calculate the national income, we will do in the domestic income, we will add NFIA. After adding NFIA in the domestic income, we will get national income. So here we have seen that to calculate the national income, we have to follow three steps. Number one, we have to find out GDP MP. To find out the GDP MP, we have to consider the gross final consumption expenditure. Under the gross final consumption expenditure, we consider private final consumption expenditure and the government final consumption expenditure. Then we add gross domestic capital formation. Here the gross domestic capital formation means what? It means gross domestic fixed capital formation plus change in stock. Net export means export minus import. So after calculating GDP MP, we will calculate domestic income. How? By deducting depreciation and NIT. After that, we have to find out, that is the second step. Third step is we have to find out the value of NFIA. To find out the value of NFIA, we have to calculate FIFA. FIFA means factor income earned from abroad, and FITA means factor income paid to foreigners in India. The difference between the two is called NFIA. In the domestic income, we have to add NFIA to get national income. These are the steps that we have to follow to calculate the
national income by applying the expenditure method. More information we will get when we solve the numericals. Let us see. That's the first question. What we have to do under the first question? Here we have to calculate the domestic income, NDPFC. Okay. First you draw the format. Here I write down particulars. Here I write down rupees in crore. Okay. Draw the format. First is gross, final consumption expenditure. Then we are having gross domestic capital formation. Then we are having net export. After considering it, we will get GDPMP. अब क्या करना है? We have to deduct depreciation. Depreciation माइनस करूंगा और क्या माइनस करूंगा? NIT. NIT means net interest minus subsidies. Okay. Then finally I will get the domestic income. फिर मेरी domestic income निकल आएगी. चलिए, I've drawn the format. ठीक है. Now read the question, put the value. First is private final consumption expenditure. Here what we consider? We consider the private final consumption expenditure and the government final consumption expenditure. The private final consumption expenditure is 400. Okay. Gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation total is given 100. It means individual item, that is gross domestic fixed capital formation, will not be considered and the change in stock will not be considered because the total is given to us. यहाँ पे टोटल गिवन है, इसलिए इसके अंदर क्या क्या आता है? दो चीजें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक. दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा. चलिए, चेंज इन स्टॉक मैंने आपसे कहा नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टोटल आपको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो इंडिविजुअल नहीं आता. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिल्कुल आएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है. कितना है आपका? 60. या लिख लीजिए. क्या करना है मुझे? माइनस करना है. ठीक है, टिक लगा लेते हैं. NFI आपको दे रखा है 10. क्या NFI आएगा? नहीं आएगा, भूल जाइए, फॉर्मेट में नहीं आ रहा. नेट एक्सपोर्ट है, लिख लीजिएगा. कितना है नेट एक्सपोर्ट? -20. ले लीजिए. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. इज इट गिवन? डेफिनेटली इट इज गिवन. कितना है? 20 है, माइनस कर दीजिए. कर दिया. फिर है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मैंने आपसे कहा था ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आपका प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों आता है. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 100 है. टोटल करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 500. ओके, यहाँ पे आ गया 100. फिर 20 माइनस करोगे, 600 में से 20 माइनस करूंगा, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 580. ठीक है, इफेक्ट ले लेते हैं. 500 उसमें आपने ऐड किया 100 माइनस किया 20, आपका आ गया 580 माइनस किया 20 माइनस किया 60, आपका ये आ गया 500. आई होप द आंसर इज क्लियर. सोल्यूशन इज क्लियर टू यू. समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हो रहा है. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, छोटा सा लिखा भी हुआ है 500. ओके फाइन. अगर समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा. राइट डाउन सर समझ में आ रहा है अच्छी तरह, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड. मुझसे 1 to 1 जो जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट लेते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं. इसमें करना क्या है देख लेते हैं. मुझे यहाँ पे GNP MP निकालना है. क्या निकालना है आपको? यहाँ पे GNP MP. वेरी गुड. चलिए देखते हैं. सबसे पहले पर्टिकुलर्स. यहां पे लिख दीजिएगा रुपीज इन करोड़, लिख दिया.
यहां पे लिख दीजिएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब हो गया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आ गया आपका जीडीपी एमपी। निकालना क्या है आपको, आपको जीएनपी एमपी निकालना है। इसका मतलब यहां पे आप ऐड कर देंगे एनएफ। आइए कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे आप, जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए उन्हें पता होगा जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसमें प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट समझने आने के बाद आपको पुराना मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, जब काम बहुत आसानी से होता है तो मेहनत ज्यादा क्यों करनी चाहिए। नंबर लो, एंजॉय करो। इसे कंसीडर करने के बाद आपका निकल के आ जाएगा जीएनपी एमपी। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। मैंने आपसे कहा था पर्सनल कंजम्पशन फाइनल के अंदर ही आता है। यहाँ पे दो आते हैं, प्राइवेट आता है, गवर्नमेंट आता है। पर्सनल आपको दे रखा है 27,500 का, टिक कर दीजिएगा। गवर्नमेंट आ रहा है 300, ये आ गया आपका 30,500। बहुत बढ़िया, चलिए जो जो होता जाए उसमें टिक लगाते जाइएगा। अब नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको दे रखा है फिक्स्ड। आप भी जानते हैं यहां पे दो चीजें आती हैं, एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चलिए यहाँ पे आपको फिक्स दे रखा है कितना है 2500, लिख देते हैं 2500। ओके बढ़िया। अब आपको दे रखा है इंपोर्ट और नीचे दे रखा है एक्सपोर्ट, देखते हैं। अब आपको यहां भी जानते हैं आप नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे इंपोर्ट आपको दे रखा है कितना 500, मैं यहां लिख रहा हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है। क्या लेना है हमने, बिल्कुल लेना है। 250 लिखा है नेगेटिव में, ले लीजिएगा 250 नेगेटिव में। ओके, सब्सिडीज लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि एनआईटी नहीं आ रहा है यहाँ पे। फॉल इन स्टॉक बिल्कुल आएगा। फॉल इन स्टॉक का मतलब होता है आपको स्टॉक नेगेटिव में दे रखा है। फॉल का मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग और आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तभी तो कहते हैं क्लोज फॉल। फॉल का मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है, यहां लिख लीजिएगा। चलिए आपका ये भी आ गया, यहां पे भी टोटल लिख देते हैं 2200 आ गया है। चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, कितना एक्सपोर्ट है आपका 1000, यहां डाल देते हैं एक्सपोर्ट। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 500, यहां डाल दीजिए आप 500। ओके बहुत बढ़िया, डाल दिया। डेप्रिसिएशन आपको लिखा है 1000, क्या डेप्रिसिएशन आ रहा है, डेप्रिसिएशन कहीं भी नहीं आ रहा। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहा है क्या यहाँ पे, देखो सब्सिडी तो वैसे भी जरूरत नहीं थी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेना ही नहीं है। क्यों लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट तो निकालना नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। चलिए इन सबका इफेक्ट लेके टोटल करते हैं, कितना निकल के आ रहा है 30,500 है। प्लस कर दीजिएगा 2200, प्लस कर दीजिएगा 500, ये आपका निकल के आ गया 33,200। 33,200 इसमें माइनस कर दीजिएगा 250, माइनस करूंगा अगर 250 तो निकल के आ जाएगा आपका 33,950। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी, ये कैलकुलेट करना है। बहुत बढ़िया, इंफॉर्मेशन आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहां पे लिख दीजिएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख दीजिएगा रुपीज इन करोड़। बहुत बढ़िया, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पे क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। क्या निकल के आएगा आपका, जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम चाहिए, जर्मनी नहीं दी मुझे फरारी कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। जी से एन में जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डी से एन में जाऊंगा तो आपका एनएफआईए प्लस होगा, एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जाऊंगा तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होगा। इन सबको लेने के बाद आपकी निकल के आ जाएगी नेशनल इनकम। सॉरी, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप भी जानते हैं, यहाँ पे दो आता है, पर्सनल आएगा, गवर्नमेंट आएगा। पर्सनल है आपका 2000, कॉपी कर देता हूं, ठीक है, टिक भी मार दीजिएगा। गवर्नमेंट आ रहा है आपका 700, इफेक्ट बाहर ले लीजिएगा, 2700 है। बहुत बढ़िया। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक के अंदर दो चीजें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। अब यहां पे आपको टोटल दे रखा है, टोटल कितना है आपका 200। इसका मतलब जो इंडिविजुअल उसे भूल जाना। नेट एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ है आपको, कितनी वैल्यू है भाई नेट एक्सपोर्ट की, 300। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया 3200 टोटल। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है 400। बहुत बढ़िया है, लिख दिया मैंने, टिक कर दीजिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यहां पे लिख दीजिएगा आप माइनस। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपका 50, यहां लिख दीजिएगा 50। आपका आंसर हो जाएगा ये, ओके देखते हैं, 3450 माइनस करूंगा आ जाएगा 3350। देखते कितना आ रहा है, 3350 ही आ रहा है। बहुत खुशी होती है जब आंसर सही हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स को यूज करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मुझसे जुड़िएगा 1 to 1, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा सो दैट आई ऑल्सो कम टू नो, रिक्वायरमेंट्स आपकी पता लग जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आपका आया है बोर्ड 2013 में। चलिए क्या निकालना है इसमें, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। अगर समझ में आ रहा हो लाइक बटन को दबाने का। पर्टिकुलर्स रुपीज इन करोड़। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। यहां आएगा ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपका आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट। क्या निकल के आया आपका, जीडीपी एमपी। नेशनल इनकम है, जी को अगर आप नेट में कन्वर्ट करोगे माइनस डेप्रिसिएशन, डी को अगर
एन में कन्वर्ट करोगे, नेशनल में कन्वर्ट करोगे तो आप NFIA आप ऐड करोगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में आप कन्वर्ट करोगे तो NIT माइनस करोगे। आप लोग जानते ही है जर्मनी ने नहीं दी मुझे फरारी, किसी बंदे को याद नहीं है प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना है आपको 1-to-1 गूगल फॉर्म फिल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। खैर उसके बाद क्या निकल के आएगा आपका, उसके बाद निकल के आएगा इसमें इन सबको लेने के बाद नेशनल इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है आपका, कितना है आपका 900। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट आता है, प्राइवेट आता है। प्राइवेट है आपका 900, टिक कर दिया मैंने इसमें। प्रॉफिट आ रहा है भाई, एक्सपेंडिचर मेथड है, आपको दिख रहा है कहीं भी फॉर्मेट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है? नहीं, प्रॉफिट नहीं दिख रहा, काट दीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल दिख रहा है, 400 है ये रहा, यानी इसका टोटल आ जाएगा आपका 1300, कॉपी कर दिया, बहुत बढ़िया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, आप देख सकते हो यहां पे आता है, कितना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका 100 है, माइनस कर दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक टोटल ही दे रखा है, यहां भी आप जानते हो दो आइटम्स आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड एंड चेंज इन स्टॉक। जब टोटल दे रखा होता है तो इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करते, मैंने टोटल लिख दिया, टिक भी कर देता हूं। आपका चेंज इन स्टॉक दे रखा है, क्या कंसीडर करूंगा? नहीं, क्योंकि टोटल गिवन है, अगर टोटल गिवन हो तो इंडिविजुअल नहीं लेते। ये जो आपका चेंज इन स्टॉक है वो सेकंड हेडिंग के अंदर आता है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक, अब ये नहीं आएगा, टिक कर दीजिएगा। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है आपका -40, बिल्कुल आ रहा है, लिख दीजिएगा -40, टिक कर दीजिएगा। डेप्रिसिएशन दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना है जी 20 है आपका, बिल्कुल आएगा। क्या करना है? माइनस करना है, कर देते हैं। उसके बाद नेट इंपोर्ट लिखा हुआ है, भाई मुझे लेना होता है एक्सपोर्ट, क्या लेना होता है? नेट एक्सपोर्ट। अगर आपका नेट इंपोर्ट लिखा हो और इसे आपको एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना हो तो यहां साइन चेंज कर दीजिएगा, प्लस है माइनस कर दीजिएगा, माइनस है प्लस कर दीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, मुझे लेना होता है नेट एक्सपोर्ट, नेट इंपोर्ट से अगर एक्सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो यहां पे जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दीजिएगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? +30, क्या हो जाएगा? -30। चलिए, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। टोटल लेते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या कहानी निकल रही है देखते हैं। GDP-MP निकल के आ रहा है आपका 1520, 1520। इसमें से आपने माइनस क्या करना है? आपने माइनस करना है 20, आपने माइनस करना है 40 और आपने माइनस करना है 100। आपका आंसर निकल के आ गया 1360, 1360। आप यहां भी देख सकते हैं, यहां भी आंसर लिखा है 1360 करोड़। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छी तरह। एक चीज याद रखिएगा, काम बहुत आसान हो जाता है अगर मुझे जर्मनी ने नहीं दी फरारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह समझना है, मन है तो मुझसे 1-to-1 जुड़िएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म गिवन है, उसे फिल करिएगा। चलिए खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपको नेशनल इनकम निकालना है, यानी NNP FC, और ये क्वेश्चन आपको इनकम मेथड से भी सॉल्व करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी सॉल्व करना है। एक्चुअली क्या होता है कि पेपर में हमें जो क्वेश्चन मिलता है वो दो मेथड से सॉल्व करने के लिए मिलता है। बहुत रेयर होता है कि आपसे पूछे इनकम मेथड से सॉल्व कर दो या वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व कर दो। मोस्टली आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां देख सकते हो आप इनकम मेथड से भी करना है और एक्सपेंडिचर मेथड से भी करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूं,
पहले मैं एक्सपेंडिचर में इनकम मेथड से सॉल्व कर लेता हूं, बाद में मैं एक्सपेंडिचर मेथड से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स हो गया, रुपीज इन करोड़ आ गया, रिव्यू भी हो जाएगा कि भाई मुझे याद है कि नहीं है। चलिए अब यहां फॉर्मेट में डालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनकम मेथड की बात करूं तो क्या निकल के आता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिख दीजिएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर क्या निकल के आता है आपका, फिर आता है मिक्स्ड इनकम। इन सबको कंसीडर करने के बाद क्या निकल के आएगा आपका, डोमेस्टिक इनकम। आपको नेशनल इनकम निकालना है, आप ऐड कर दीजिएगा NFIA। क्या निकल के आएगा आपका, आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम। यहां पे हम लोग कुछ आइटम कंसीडर करते हैं, जैसे यहां रेंट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, और यहां पे एक चीज और भी आता है आपका, वो क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम लोग वर्किंग भी बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली प्रॉफिट गिवन हमें नहीं होता टोटल। प्रॉफिट का मतलब होता है समीशन ऑफ 3 आइटम्स, जिसमें आपका आता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कॉर्पोरेट सेविंग प्लस रिटेन अर्निंग का समीशन, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आपका आएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल ही दे रखा है आपको, लिख लीजिएगा 1200 मैंने कॉपी कर लिया, टिक भी लगा दीजिएगा जो आइटम आ गए हो। NFIA लिखा हुआ है आपका, NFIA वैसे भी आ रहा है 20, टिक कर लीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं भी नहीं आ रहा, छोड़ दीजिएगा। प्रॉफिट टोटल ही दे रखा है आपको, कितना है 800, यहां लिख लिया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं आता इनकम मेथड में। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आता इनकम मेथड में। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है, फॉर्मेट में नहीं आ रहा, भूल जाइए। रेंट आ रहा है, कितना है रेंट, 400 है, कॉपी कर लिया। इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है 620, कॉपी कर लीजिएगा। मिक्स्ड इनकम आपको सेल्फ एम्प्लॉयड की दे रखी है, कितनी है 700, कॉपी कर लीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट नहीं आ रहा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा। टोटल करते हैं, 400 प्लस 620 प्लस 800, ऑपरेटिंग सरप्लस का टोटल आ रहा है आपका 1820। इसमें आप 1200 ऐड कर दीजिएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, और ऐड कर दीजिएगा 700, ये है आपका मिक्स्ड इनकम का, ये आ गया 3720। 3720 माइनस कर दीजिएगा 20, कितना आ जाएगा 3700। इनकम मेथड से आपने निकाला, आप यहां भी देख सकते हो 3700 निकल रहा है। इनकम मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है, आंसर सही है तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी सही आना चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, सेम थिंग, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। चलिए क्या लिखना है यहां पे, पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख दीजिएगा रुपीज इन करोड़। अब एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर क्या आता है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस। क्या निकल के आया आपका, GDP MP। नेशनल इनकम है, डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा, ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, आप NFIA प्लस करिएगा, माइनस कर दीजिएगा NIT, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा आपका? नेशनल इनकम NNPFC। चलिए पढ़ते हैं और डालते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं आता। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल आ रहा है, कितना है? -20 है, लिख लीजिएगा -20। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है, कितना है? 120 टिक कर दीजिएगा। प्रॉफिट नहीं आता। प्राइवेट फाइनल आप भी जानते हो या दो चीजें आती हैं, प्राइवेट आता है, गवर्नमेंट आता है। प्राइवेट आपको दे रखा है 2000, बहुत बढ़िया, टिक कर दीजिएगा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये रहा आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल दे रखा है। आप जानते हैं यहाँ पे दो चीजें आती हैं, यहाँ पे आता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रखा है। हम लोग ग्रॉस लेते हैं या फिर हम लोग नेट लेते हैं? हम लोग लेते हैं ग्रॉस, हम लोग नेट तो नहीं लेते ना, नहीं लेते। और हमेशा याद रखिएगा, अगर मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना, सॉरी, अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा। किस में ऐड कर दूंगा? नेट में। क्या निकल के आ जाएगा आपका? ग्रॉस। अब यहां पे आपको जो गिवन है वो है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना है? 770, ठीक है, 770। इसमें क्या कर दीजिए आप? डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन कहां लिखा है देख लेते हैं, ये लिखा है डेप्रिसिएशन, लकीली मिल गया आपको, ये रहा। यानी आपको नेट गिवन था, कितना नेट था भैया? 770। डेप्रिसिएशन गिवन था 130, ऐड कर दीजिएगा, ये आ गया आपका 900, ठीक है। 770 प्लस 130, ये आपका आ जाएगा 900। याद रखिएगा, ज्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंफ्यूजन भगाना हो 1 to 1 जुड़ सकते हो मुझसे। गूगल फॉर्म फिल करना है आपने, सिर्फ एक थोड़ा सा डिस्टेंस दूर है हम लोग आपसे। खैर, रेंट नहीं आता, काट दीजिएगा। इंटरेस्ट नहीं आता, काट दीजिएगा। मिक्स्ड इनकम नहीं आता, हटा दीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट आपको दे रखा है -30, लिख लीजिएगा -30। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कितना है आप देख सकते हो, ये आपको दे रखा है 1100, आप लिख दीजिएगा 1100। कितना आ जाएगा आपका? 3100, ठीक है। अब टोटल लेते हैं। सारी चीजें आपने जो जो लिखनी थी वो डाल तो दी है, लेकिन डेप्रिसिएशन लिखना भूल गए हैं। बट डेप्रिसिएशन नीचे तो आना ही था, वो भूल गए आप, ऊपर बस आपने ले लिया। खैर, अब लेते हैं 1100 आया आपका, इसमें आपने ऐड किया 900, इसमें आपने माइनस किया 30, बहुत बढ़िया, फिर माइनस किया 130, फिर माइनस किया 20, फिर माइनस किया 120। आप देख सकते हो आपको यह आंसर निकल के आ गया 3700 टोटल। यहां भी आपको दे रखा था 3700 टोटल, टैली हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टेप में चलूं तो मैं यहां देख लेता हूं। आपका जीडीपी एमपी आ रहा था 3970, ठीक है, ये रहा। उसमें आपने ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया और आंसर आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा? अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स को यूज करने का है, ठीक है, यूज द कमेंट बॉक्स। चलिए, अभी हम लोगों ने नेशनल इनकम सॉल्व किया है, बेस क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग बार बार रिव्यू करते हैं, बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मुझसे 1 to 1 जुड़ सकते हैं। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल कर लीजिएगा। आई गेट योर इंफॉर्मेशन एंड आई विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है।
व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, spread the video as much as you can. During this pandemic time period, it's a request. Stay home, stay safe, and above all, don't forget to wear mask. Om Shanti.